من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. صدق الله العظيم. Now we start the meeting for the unite of our great President Ghulam Nabi. Now the meeting will be presided by Mr. Ghulam Nabi sir, son Jaiv Dasgani sir. I request him to come and occupy the chair. Mr. Jaiv Dasgani sir. Now I request Mr. Shamsuddin sir, our Vice President, to come and occupy the chair.
Now I request Mr. Inam Ahmad Sahab, treasurer of our committee, to come and occupy the chair. It is being conducted by the managing committee of the Masjid Alia. So you have to come and occupy the chair. Inam Ahmad Sahab. Now I request Mr. Shahzad Sahab to come and occupy the chair. He is the committee member, oldest committee member. Now I request Mr. Abdul Majid Sahab, he is the managing committee member, to come and occupy the chair. इफ्तिखार साहब को बुला लें चंद And now I request Mr. Iftikhar Sahab to come for some minutes. You are not presiding, please come and Habib Ashar Sahab, I request you. ठीक है वो फरहान आने वाला है फरहान के लिए अच्छा हाँ अच्छा Now we will start the program. This meeting is the condolence meeting. Condolence meeting conducted for the late Ghulam Yazdani Sahab, Rahmatullah alayh. And the first one I want to explain that Ghulam Yazdani Sahab is the pioneer for building this mosque. He has sent a message that always he was very close to me while I was in the committee. We used to share the thoughts, and for all of us, he was a fatherly figure. And for me and for the committee also, he was more fatherly than any other else. So at this juncture, I want to say that he has spread the message that Masjid Alia committee means unity. Masjid Alia means working together for the common cause, where there is life, where there is sacrifice, and where there should be unselfish toil. He used to just always pressurize us to cooperate among ourselves. He used to tell us that the cooperation is the mightiest thing in humanity. It is an instrument by which the humanity moves. It is a power by which it progresses. He has also sent the messages that whatever you want to do it at the right time, not that you go on postponing it. The best examples of which he has started conducting the Mahafil section, Mahafil on Monday and Wednesday and Saturdays. So all these Mahafils he has been conducted for the past 30 years and well in time, except we have just in the time of the COVID, we have missed it for the 6 to 7 months. Apart from this, it was being conducted regularly for the past 30 years. Apart from this, he has started conducting the Iqbal Sinachi on every Wednesday. And throughout the world, our committee and by his pursuance, we have conducted the 1000 lecture of Iqbal Sinachi in Urdu Hall in 2019. At the lecture also, Mr. Taqi Abidi from Canada, he has been invited, especially he flown here and he has taken the advantage of presiding this function at the Urdu Hall. Apart from all this, I want to tell you, just because of his perseverance of his conducting the Mahafil and for building this Alia Masjid, in the Guinness World of World Record, our Mahafil, our Masjid Alia has been awarded the second best mosque. Then it was the Asfail of Andhra Pradesh. I have that cutting also, but
I will present in the next meeting on 14th, which we will be conducting from all the organizations. So that will be conducted another on 14th of this month. So just because of his endeavor and by his work only, our masjid, after the Makkah Masjid, has given in the Guinness Book of World Record the second place. So I deeply with grief, I know words that if you add any prefixes, suffixes, the word which has done it, I think it will take another 1 hour. If I add prefix and suffix also, the work is conducted. So, gentlemen and the Muslims gathering here, we used to stress upon that whatever you want to do it at the right time. And he was the pioneer and he was the best example for this. He used to tell us that don't be postponed today. He said that don't think that today is too early, but don't forget that if you delay it, tomorrow will be too late. So it is the work which has done it. About the construction of this mosque also, he has crossed all the T's and dodged all the I's for construction of this mosque. He was instrumental in building this mosque to a great height. Apart from all this, he faced many hurdles. That boundary war also, the erstwhile N.T. Ramarao, he was left behind for widening of this road. But he stood like a rock so that the masjid, that part should not be given to the MCH. So there are many things which the other speakers will speak to us. So with all these tributes, I thank Mr. Javed Yazdani sir also for accepting our invitation and just presiding over this function. So now I request all just you pray for him, for his to overcome the sins, and let Allah Ta'ala grant him the Jannatul Firdaus, and let Allah Ta'ala make Jannatul Firdaus to the departed soul, and let Allah Ta'ala also be his grave be full enlightened with light, and may Allah Ta'ala also give the to overcome, give us this family to overcome this grave. Not only this, in a week's time, you imagine in a family, he has lost his son-in-law, that family has lost his son-in-law, Khaja Moizuddin also. And in a week, then the last Friday, this our late Ghulam Yazdani Sahab has passed away. So let Allah Ta'ala give them courage to overcome this burden. So, and again, Allah Ta'ala से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमको आने वाले परेशानियों और बलायत से महफूज रखे, और हम सबको अल्लाह ताला हमको सबको let the kalma be la ilaha illallah, the last word when we are in peace. Let Allah Ta'ala take our lives when we are in peace. So अल्लाह ताला आने वाले परेशानी बला से महफूज रखे और हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अल्लाह ताला ख़ानदान यज़दानी साहब को अपने जो खोए हुए गम को अल्लाह ताला उनको खुशियों में बदल दे. With these few words, now I request Mr. Shamsuddin Sahab to say a few words on this occasion. Mr. Shamsuddin Sahab, he is the Vice President of our Masjid Committee. जनाब जावेद यज़दानी साहब सदर ताज़ियती जलसा इस मजलिस के, और जनाब
हबीब अशरफ साहब, इफ्तिखार साहब, डॉक्टर आसिफ साहब, हम मेंबरान ने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान अरकान कमेटी और हमारे मखसूस सामईन जनाब यूनुस साहब, हमारे रसूल खान साहब, हमारे खाजन मुअज़्ज़िज़ जो है बरगज़ीदा शख्सियत कमेटी की इनाम अहमद साहब और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ग़ुलाम यज़दानी साहब का यह जलसा ताज़ियत है। उनके कारनामे समाजी, माशी और तालीमी सरगर्मियाँ उनकी अज़हर मिन अश-शम्स हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब अच्छे तरीक़े से वाक़िफ़ हैं। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने जो जाँफशानी से अपने जिगर खून से इस मस्जिद आलिया की जो है हर लम्हा खिदमत की है, उसको परवान चढ़ाया है। एक मामूली से सफ़ाली पोश मकान से इस पुररौनक आलिशान मस्जिद जो आपके सामने है, यह सिर्फ़ और सिर्फ उनकी निगहदाश्त, सरपरस्ती और उनकी गाइडेंस का नतीजा है कि हम लोग आज इस मस्जिद में बैठे हुए हैं और इसकी शोहरत चार बांग है। इसके अलावा वो इतनी गहरी नज़र यहाँ के हर काम पर, हर उमूर पर रखा करते थे कि यहाँ तक कि कहीं दागदोज़ी की ज़रूरत पड़ती, कहीं फ़र्श वगैरह भी उखड़ा हुआ दिखता तो फ़ौरी वो निशानदेही करते और इसकी इस्लाह की कोशिश करते। इसके बावजूद जो है जो उमूर कमेटी है इंतज़ामिया, उसकी जो है बहुत ही गहरी निगाह से उसका मुतालिया करते और उसकी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते थे। अलावा इसके आपके जो महाफिल का उन्होंने इनेकाद किया है, जो हम हर चहारशंबे के दिन, हफ्ते के दिन और पीर के दिन रखते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं उनको मुद्दऊ करते और जो है उनके जो है खिताबात से हम लोग फैज़याब होते थे। ये उनका आला कारनामा है। इसके अलावा आपने जो है जो बाग़-ए-आमा की वॉकर्स एसोसिएशन क़ायम की, वहाँ पे मंथली लेक्चर्स का जो है उन्होंने सिलसिला जारी किया और जो है उसको बहुत सारे लोग उसको जो है पसंदीदगी की निगाह से देख रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पे बाग़-ए-आमा में नई नई बिल्डिंगें हुकूमत की तरफ से बनने लगी तो आपने मदाखलत की। उन्होंने कहा कि ये फ़िज़ाई जो है आलूदगी होगी, नई नई बिल्डिंगें के बनने से रिट पिटीशन डाला और उसको उन्होंने रोक दिया, हुकूमत के कामों को रोक दिया। आपकी शख्सियत जो है बिला उज़्र, बला जो है तनक़ीद के काबिल तारीफ़, नाकाबिल फ़रामोश है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे जो है उनकी एक किताब है, कुछ यादें कुछ बातें, जिसके अंदर उन्होंने अपने क़दीम तजुर्बात को जो है ज़ाहिर किया। वो एक यादगार नमूना है उनकी ज़िंदगी का। अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है उन्होंने बड़ी खिदमात ये की कि अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी खिदमात, उनके जज्बात और उनके जो है हौसले को जो है जो दिया गया है हमको, उसको जारी व सारी रखें और इसको बेहतर से बेहतरीन जो है बनाने की कोशिश करें। ये कहते हुए मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। उसके साथ हमारे मोइज़ुद्दीन साहब जो हमारे रुकन थे कमेटी के, उनकी भी जो है मैं ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला इन दोनों हज़रात को जन्नतुल फ़िरदौस में मुक़ाम आला नसीब अता फ़रमाए और मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। बाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Our committee member Madisa, he is a businessman. He is in charge of the business of the telecommunication tower of Andhra Pradesh and Telangana. So he is a managing committee member. I request him to see about our late president, Ghulam Yasdani. So Madisa.
इधर दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यज़दानी साहब की शख्सियत के लिए ये अदना सा मेंबर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमें जो गम है उनकी जुदाई का, खाली उनकी जुदाई का नहीं, मोई साहब की भी जुदाई हमारी कमेटी के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। क्यों? ये लोग के खिदमात मैं नहीं समझता यज़दानी साहब के खिदमात जैसे खिदमात आगे कोई कर पाएंगे इस मस्जिद के लिए। और मोई साहब हर वक्त चट्टान की तरह इस मस्जिद के जो भी मसाइल आए उसके लिए खड़े हुए, ना कि खड़े हुए बल्कि बड़ी दुख के साथ कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी जान दे दी। ये हम कमेटी वालों के लिए ये भरपाई कभी नहीं हो सकती। सेक्रेटरी साहब, अल्लाह ताला उनके ख़बरों को नूर से भर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा नसीब फरमाए और उनके रिश्तेदारों को, ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं भी इस कमेटी का मेंबर काफ़ी टाइम से हूँ और थोड़ा एक्टिव भी रहता था। हमारी मीटिंग्स में अक्सर हमारी रोक जोक होती थी, तो कभी भी कोई इसको पर्सनल नहीं माना, इसको अपनी तरफ से ये सोचे कि हमारे लिए एक इस्लाह के लिए अच्छी चीज़ है। हालांकि काफ़ी लोग काफ़ी एलिगेशंस लगाए, हमने कमेटी ने उस एलिगेशंस को फेस किया, उसको ना सिर्फ यहाँ पर लीगली कोर्ट में भी उसको फेस कर हमने इस कमेटी को कायम रखा। और चंद लोग ने यज़दानी साहब और उनके घर वालों के लिए थोड़े मतलब जो गैर वाजबी बात थी वो भी कही उन्होंने। लेकिन देखिए, एक मस्जिद का मेंटेनेंस कोई छोटा मेंटेनेंस नहीं होता है और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मेरे ख़्याल से पब्लिक गार्डन की मस्जिद के बाद इस मस्जिद का नंबर आता है। और इतनी जुमा का जो गैदरिंग है, कोई मस्जिद इतना बड़ी गैदरिंग को मैनेज नहीं कर पाती है। मक्का मस्जिद तो ऑलरेडी मेंटेन्ड है और अपनी पब्लिक गार्डन की भी वहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट, ये दोनों मस्जिद को गवर्नमेंट सपोर्ट है। लेकिन इस मस्जिद को विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट यज़दानी साहब और जो मैनेजिंग कमेटी है इन्होंने बखूबी, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इतना बेहतरीन मैनेजमेंट कर आगे बढ़ाया। ना सिर्फ बढ़ाया लेकिन ये देखा कि अच्छे से अच्छी सहूलतें हम यहाँ के मुसल्लियों को प्रोवाइड करें। आप देखिए, कोई मस्जिद में खाने का दोपहर में खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, रेस्ट करने का इंतज़ाम, मस्जिदें लॉक हो जाती है ज़ोहर की नमाज के बाद। लेकिन यहाँ पर जो ताहिर अली साहब है ये तकरीबन मेरे ख़्याल से 15 से 16 घंटे इस मस्जिद में टाइम गुजारते हैं। इससे पहले नूरुद्दीन साहब थे, अल्लाह ताला उनको नहीं भूल सकते हैं, उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा नसीब फरमाए। नूरुद्दीन साहब ने भी काफ़ी मेहनत करके इस मस्जिद का मेंटेनेंस आगे बढ़वाया। आप देखिए, हमारा एक छोटा सा 100-200 गज़ का घर होता है और हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं और उसमें भी कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ बड़े बोलते हैं, तो हमको माफ़ कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये तो इतनी बड़ी मस्जिद है, इतने मेरे ख्याल से 25 बाथरूम मेंटेन होना, उसमें का एक दरवाज़ा अगर टूटा है तो मतलब हमारे को शिकायत करने का हर मुसल्ली को हक़ है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए भी अपने से भी ताउन कर भी आगे बढ़ना मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा। और फरहान साहब को भी मैं मेरे दिल से आपको वो करता हूँ, आपकी वालिद के खिदमात को हम नहीं भूल सकते। भले ही दुनिया कुछ भी बोले या कुछ भी वो करे, लेकिन मैं तो मीटिंग्स में काफ़ी उनके साथ मेरी तो रोक झोंक होते रहती थी, लेकिन कभी उन्होंने बुरा नहीं माना, कभी उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप पे नहीं गए। कभी भी यही बोलते थे, मजीद भाई ठीक है इंशाल्लाह हम
आगे इसकी इस्लाह कैसा करेंगे। उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा नसीब फरमाए। और मैं जावेद यज़दानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके वालिद की लेगेसी को आप आगे लेके चलिए। ये हम कमेटी मेंबर्स की दिली ख्वाहिश है। इस लेगेसी को देखिए आप, महल बनना आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और आप ये हमारा दर्द समझिए कि हमने 2 आदमी खोए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त पे 2 आदमी खोए हैं हमने। तो मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि आप इस मस्जिद को, आप हर वक्त आपकी वालिद की लेगेसी को और इस कमेटी को, भले ही ये कमेटी हो या आगे आने वाली जो भी कमेटी रहे, उसको आप पूरा ताउन कीजिए। क्यों बोले तो आप लोग के पास जो ये इतने साल का बैकग्राउंड रिपोर्ट है, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 साल से हूँ, मेरे ख्याल से शमशुद्दीन साहब सबसे पुराने होंगे, फिर उसके बाद सेक्रेटरी साहब है, तो इनके लिए आपका बैक सपोर्ट होना ज़रूरी है। फरहान साहब आपका भी बैक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है और आजकल आप हिंदुस्तान के हालात अगर देखें तो मस्जिदों पे बहुत से लोगों की नज़र है और हमारी रोड की मस्जिद है। तो इसीलिए मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं थोड़ा वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ लेकिन मैं एक डिटेल में इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। क्यों, बहुत से लोग मतलब जो मुसल्ली तो रेगुलर मुसल्ली नहीं है, लेकिन जो थोड़े मुसल्ली है उनको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मस्जिद कमेटी कैसा चल रही है, उसमें मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, लोग क्या रोल कर रहे हैं, कौन किसका क्या रोल है, ये सब कुछ है। अब जैसा अगर मोहित साहब जैसा अब लीगल सपोर्ट हमको चाहिए था हमारे कमेटी के ख़िलाफ़, यज़दानी साहब के ख़िलाफ़ चंद लोगों ने ये डाला था कि भाई मिस मैनेजमेंट ऑफ कमेटी, लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है कि कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट किया। और मैं चाहता हूँ कि मस्जिद के मसाइल मस्जिद में हल हो, ना कि कोर्ट्स या बाहर में। और एक क्या है, लोग कोई पर्सनल अपने खातिर मस्जिद का नुकसान ना करे, वो मैं मेरे लिए कह रहा हूँ। मस्जिद साहब खुद अगर मेरे को तकलीफ़ उठाना पड़े और मुझे जान देना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए राज़ी हो जाऊँ, लेकिन मस्जिद का नुकसान ना करूँ। अब ये अगर लोग पूछेंगे कि भाई मस्जिद के नुकसान से क्या मतलब है, मस्जिद के नुकसान से आप देखिए कि एक बैंक अकाउंट नॉन ऑपरेशनल है 2-3 साल से। हम जब भी जाते हैं वहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई एक मुसल्ली ने शिकायत की, औकाफ में शिकायत है ये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो चीज़ अगर आप ये सोचिए कि मेंटेनेंस कैसा चलेगा, कोई ज़रिया नहीं है। दूसरे मस्जिदों में मलियाँ होती है, ये होती है, कुछ फंड्स आते हैं बाहर से, लेकिन इस मस्जिद को कोई भी फंड्स नहीं है। और हर जुमा अलल ऐलान ये होता है कि आपके ताउन से मस्जिद चल रही है। तो अल्लाह का घर अगर आपके ताउन से चल रहा है तो ये खुशी की बात है या गमी की बात है? हमको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह का घर आप लोगों के ताउन से चल रहा है। मैंने थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया, फिर से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला यज़दानी साहब और मेरे हरदिल अज़ीज़, मैं मोइस साहब को तो नहीं भूल सकता, यज़दानी साहब से मेरा उतना इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन मोइस साहब अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा नसीब फरमाए। और यज़दानी साहब के खिदमात को, जैसा पुराने लोगों ने उनका ऑलरेडी उनके बैकग्राउंड को बता दिया, तो मैं उसमें ज़्यादा एंटर नहीं होना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरी फिर से अदबन फिर से यही गुजारिश है मुसल्लियों से भी और जावेद यज़दानी साहब से, फरहान साहब से, कि आप इस मस्जिद की भाग दौड़ में आप पूरा ताउन कीजिए। और साथ में एंड में सेक्रेटरी साहब और हमारे नायब सदर साहब के भी खिदमात और हमारे ट्रेजरर साहब इनाम साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं कि इनाम साहब ने भी काफ़ी अच्छा ये अकाउंट्स लेके चल रहे हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट लेके चल रहे हैं। यज़दानी साहब थोड़े दिन से नहीं आ रहे थे, तो शमशुद्दीन साहब ऑलरेडी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आगे बढ़ा रहे थे। मैं फिर से अगर मेरे से कुछ गुस्ताखी हुई तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा और अल्लाह से दुआ है कि इस कमेटी को अल्लाह ताला कायम रखे
और इस मस्जिद को ता क़यामत तक कायम रखे बिला किसी तकलीफ़ के। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब, आपके सजेशंस और एडवाइजेस डेफिनेटली कमेटी के लिए बहुत मायने रखता है। अल्लाह चाहे आपके जो सजेशंस हैं, अल्लाह हम सबको जो है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब मैं जनाब